First of all, I would like to tell you that I am really overwhelmed by the love, trust, and respect you have shown in us by doing all this without any guidance from teachers. I am feeling very proud, very proud that where you have been all the arrangements were done by teachers. But in my institute, in this Janda family, everything is done by a student. That's a great thing because here you learn leadership. Here you learn the quality of leadership. And this is necessary. Only get booking knowledge is not an education. All these arrangements with full discipline is a great lesson for you all. This will work in your future. And now we talk about today. Birma sir had already described clearly that what is the meaning of true education and why are we celebrating Teachers' Day. Even he was the second president of India. You know better that president is the first person of any nation. राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. होता है ना? But we are celebrating this day as Teacher Day because no one is greater than a teacher. Not your mother, not your father, not your God, not your Allah. Because it is said that Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guru Namah. It means a teacher keeps the quality of God, generator, operator, and destroyer. Your own teacher has the quality of own. He is Brahma, he is Vishnu, and he is Mahesh. It means Shiva. It means if you respect your teacher, you get the fruit of all worship. If you respect your teacher, you will not wander anywhere in the world for your solutions, for your programs. And as you know, I think students of class 12 have studied one paragraph about Radha Krishnan in chapter number 2. He was an eminent educationist. And he had been in teaching line for 40 years. His life tenure is about 90 years and he has spent 40 years in teaching. First 14 years he has spent in playing cricket, but 40 years with education, a man is really a perfect man. He can never misguide anyone. And he was the first Vice President of India. And this election in a democratic country was really a marvelous thing. So, as you are looking, time is going very fast. टीचर्स से अनुरोध करेंगे कि विद्यार्थी स्वास्थ्य समस्या के कारण नहीं बोल पाएंगे. चलिए, जय हिंद. कहीं भी आप पढ़ लीजिए, किसी भी प्रकार के गुरु से पढ़ लीजिए, आपको विशेष कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है. इसका एक आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा, कहानी के द्वारा इसमें समझाने का प्रयास करेंगे. एक विद्यार्थी था, वो स्कूल पढ़ने गया, एक दिन पढ़ने गया. उसको स्कूल में शिक्षक बताए कि सदा सत्य बोलो. क्या मतलब है? सदा सत्य बोलो. वहां से पढ़कर आया घर, तो कोई व्यक्ति उस बच्चा के घर पे आया, उनके पिताजी को खोज रहे. हो सकता है कोई काम होगा, तो चाल किया दरवाजा पर से. उस बच्चा की माँ गई, पूछा कि हाँ बोले क्या बात है. तो आदमी बोले कि फलना जी से हमको क्या करना है, मिलना है, बात करना है. तो उधर से उस बच्चा की माँ आती है अपने पति के पास और कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है.
तो उस लड़का के पिताजी कह देते हैं कि कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। और ये घटना सारा बच्चा देखते रहता है। फिर दूसरा दिन स्कूल गया। दूसरा दिन बताया गया कि किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए, समझे। फिर आया घर पे, तो दूसरा दिन जब स्कूल से आया लौट के घर, तो देख रहा है कि उनके पिताजी अपाहिज विकलांग जो होता है, विकलांग भिखारी को अपने दरवाजा पर से उसको लाठी पहना के दोबारा भगा रहे हैं, मार रहे हैं। ये घटना देखा बच्चा। फिर तीसरा दिन वो अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं अब स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा। उनके पापा मम्मी कहते हैं क्या, क्यों नहीं तुम जाओगे? तो वो कहता है कि मैं इसलिए नहीं पढ़ने जाऊंगा क्योंकि स्कूल में हमको गलत सिखाया जाता है। क्या बच्चा कहा कि स्कूल में हमको गलत सिखाया जाता है। अब तुम खुद सोच सकते हो वो किस आधार पे कहा। ये अपने घर की परिस्थिति के अनुसार बताया। हाँ, वो कहा कि जो हमें सिखाया जाता है वो मेरे घर में ही नहीं लागू हो रहा है, सुन रहे हैं। वहाँ सीखेंगे कुछ और यहाँ उसका विपरीत देख रहे हैं। तब वो कहा, यानी ऐसा कहकर के वो अपने माता पिता या उनके पिताजी जिनमें ज्यादा कमी हो उनमें सुधार लाने का प्रयास किया, समझे। तो जब तक आपके माहौल घर के नहीं बदलेंगे, आपके मोहल्ला के नहीं बदलेंगे, तब तक सिर्फ बोलिए आप गुरु के पास जाकर के अपने आप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं ला सकते। और पढ़ने का मकसद आज के जमाने में सिर्फ नौकरी सोचा जाता है। तो ऐसा आप लोग नहीं सोचे, क्योंकि पढ़ने का मतलब नौकरी नहीं होता है। पढ़ने का मतलब है कि आपको सही और गलत की परख होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एक सवाल है, जैसे आपसे कोई कहे कि 3 जोड़ 2, 3 जोड़ कितना होगा। अब आपसे कोई सवाल इसी पे कर दे कि 3 जोड़ 2 5 ही क्यों हुआ, 6 क्यों ना हुआ, 4 क्यों नहीं हुआ। 3 जोड़ 2 5 ही क्यों हुआ, 6 क्यों ना हुआ, 4 क्यों नहीं हुआ। 6 होगा गुना कर ला तो सर मान के चारों ले नहीं। तो विद्यार्थी को, किसी भी विद्यार्थी को शिक्षक इसलिए सिखाते हैं कि 3 जोड़ 2 5 ही होता है, न कि 6, क्योंकि आप अपने जीवन में यदि किसी को 3 और 2 मिलाकर देना चाहते हैं तो 6 ना दे, और यदि किसी से आप लेना चाहते हैं तो 4 ना ले। यदि 6 दे देते हैं तो आप बेवकूफ हैं, और यदि बोलिए आपको 4 कोई दे देता है तो उससे भी सिद्ध होता है कि आप बेवकूफ हैं। और पढ़ने का मतलब मकसद नौकरी नहीं समझना है, अपने आप को सब और शिक्षित समझदार नागरिक बनाना है। और मैं इसी के साथ अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। आइए ज्ञानदा क्लासेस के डायरेक्टर सर गौतम सर आएंगे, आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। Respected MD sir, Mr. Vinod Kumar, my colleague PK sir, and all my dear students. As you know, we are all together here to celebrate the birthday anniversary.